Today we are discussing about personality and behavior part 2. Let's start. Certain types of personality traits may be more related to consumer behavior than others, such as 1. Optimal stimulation level OSL 2. Need for cognition NFC 3. Dogmatism 4. Susceptibility to influence 5. Self-monitoring behavior. इन हिंदी कुछ प्रकार के व्यक्तित्व गुण दूसरों की तुलना में उपभोक्ता व्यवहार से अधिक संबंधित हो सकते हैं, जैसे कि 1. इष्टतम उत्तेजना स्तर OSL 2. अनुभूति की आवश्यकता NFC 3. हठधर्मिता 4. प्रभावित करने की संवेदनशीलता 5. स्वनिगरानी व्यवहार. Optimal stimulation level. Optimal stimulation level. Some activities have more potential to provide individuals with some sort of physiological arousal. There are others who prefer a calm, simple and uncluttered life, while some others prefer novel, complex, exciting existence. Research in this area indicates that high optimum stimulation levels are associated with more willingness to take risks, to be innovative, try new products and actively seek purchase-related information. इन हिंदी इष्टतम उत्तेजना स्तर. कुछ गतिविधियों में व्यक्तियों को किसी प्रकार की शारीरिक उत्तेजना प्रदान करने की अधिक क्षमता होती है. कुछ अन्य हैं जो शांत, सरल और अव्यवस्थित जीवन पसंद करते हैं, जबकि कुछ अन्य उपन्यास जटिल, रोमांचक अस्तित्व पसंद करते हैं. इस क्षेत्र में अनुसंधान इंगित करता है कि उच्च इष्टतम उत्तेजना स्तर जोखिम लेने की अधिक इच्छा से जुड़े हैं, नवोन्मेषी होने के लिए, नए उत्पादों को आजमाएं और सक्रिय रूप से खरीद संबंधी जानकारी प्राप्त करें. Need for cognition refers to the degree of an individual's desire to think and enjoy getting engaged in information processing. Such individuals tend to seek information that requires thinking. Opposite to this would be those who shy away from such information and focus on peripheral information. Elm model, for instance, a consumer high in need for cognition NC and looking at an ad for Apple computer is more likely to study and concentrate on the information contained in the ad. On the other hand, a consumer low in need for cognition would be more inclined to look at the beautiful picture of iMac, ignoring the detailed information about the computer model. इन हिंदी अनुभूति की आवश्यकता. अनुभूति की आवश्यकता किसी व्यक्ति की सोचने और सूचना प्रसंस्करण में संलग्न होने की इच्छा की डिग्री को संदर्भित करती है. ऐसे व्यक्ति ऐसी जानकारी की तलाश करते हैं जिसके लिए सोचने की आवश्यकता होती है. इसके विपरीत वे होंगे जो इस तरह की जानकारी से कतराते हैं और परिधि या जानकारी ELM मॉडल पर ध्यान केंद्रित करते हैं. उदाहरण के लिए, एक उपभोक्ता को अनुभूति NC की अत्यधिक आवश्यकता होती है और वह एप्पल कंप्यूटर के लिए एक विज्ञापन देख रहा है और अध्ययन और ध्यान केंद्रित करने की अधिक संभावना है विज्ञापन में निहित जानकारी पर. दूसरी ओर, जिस उपभोक्ता को अनुभूति की कम आवश्यकता है, वह कंप्यूटर मॉडल के बारे में विस्तृत जानकारी की अनदेखी करते हुए iMac की सुंदर तस्वीर को देखने के लिए अधिक इच्छुक होगा. Dogmatism. Consumers are also likely to vary in terms of how open-minded or closed-minded they are. Dogmatism is a personality trait that indicates the degree of an individual's rigidity toward anything that is contrary to his own established beliefs. Apparently, the person is resistant to change and new ideas. One would expect highly dogmatic consumers to be relatively resistant to new products, promotions or advertising. इन हिंदी स्वमताभिमान. उपभोक्ताओं के खुले विचारों वाले या बंद दिमाग वाले होने के संदर्भ में भी भिन्न होने की संभावना है. हठधर्मिता एक व्यक्तित्व विशेषता है जो किसी व्यक्ति की किसी भी चीज के प्रति कठोरता की डिग्री को इंगित करती है जो उसकी अपनी स्थापित मान्यताओं के विपरीत है. जाहिर है, व्यक्ति परिवर्तन और नए विचारों के प्रति प्रतिरोधी है. अत्यधिक हठधर्मी उपभोक्ताओं से अपेक्षा की जाती है कि वे नए उत्पादों, प्रचारों या विज्ञापन के अपेक्षाकृत प्रतिरोधी होंगे. Susceptibility to influence. Consumers differ in terms of their proneness to persuasion attempts by others, especially when these attempts happen to be interpersonal or face-to-face. Consumers with lower social and information processing confidence show more proneness to be influenced by ads compared to those who have higher self-confidence. इन हिंदी प्रभाव के लिए संवेदनशीलता. उपभोक्ता दूसरों द्वारा अनुनय विनय के प्रयासों के प्रति अपनी स्पष्टता के संदर्भ में भिन्न होते हैं, खासकर जब ये प्रयास पारस्परिक या आमने सामने होते हैं.
कम सामाजिक और सूचना प्रसंस्करण आत्मविश्वास वाले उपभोक्ता उच्च आत्मविश्वास वाले लोगों की तुलना में विज्ञापनों से प्रभावित होने की अधिक संभावना दिखाते हैं। Self-monitoring behavior. Self-monitoring behavior. Individual consumers differ in the degree to which they look to others for indications on how to behave. Those persons who are high self-monitors tend to look to others for direction and accordingly guide their own behavior. They are more sensitive and responsive to image-oriented ads and willing to try such products. They are less likely to be consumer innovators. On the other hand, individuals who are low self-monitors are guided by their own preferences or standards and are less likely to be influenced by others' expectations. इन हिंदी स्व-निगरानी व्यवहार अलग अलग उपभोक्ता इस बात में भिन्न होते हैं कि वे किस हद तक व्यवहार करने के संकेत के लिए दूसरों को देखते हैं। वे व्यक्ति जो उच्च आत्मनिरीक्षण करने वाले होते हैं, दिशा के लिए दूसरों की ओर देखते हैं और उसी के अनुसार अपने व्यवहार का मार्गदर्शन करते हैं। वे छवि उन्मुख विज्ञापनों के प्रति अधिक संवेदनशील और प्रतिक्रियाशील होते हैं और ऐसे उत्पादों को आजमाने के इच्छुक होते हैं। उनके उपभोक्ता नवप्रवर्तक होने की संभावना कम है। दूसरी ओर, कम स्व-निगरानी करने वाले व्यक्ति अपनी प्राथमिकताओं या मानकों द्वारा निर्देशित होते हैं और दूसरों की अपेक्षाओं से प्रभावित होने की संभावना कम होती है। Locus of control. Locus of control is the center of control of an individual's code of conduct. People can be grouped into two categories, i.e., internals and externals respectively. People who consider themselves as the masters of their own fates are known as internals, while those who affirm that their lives are controlled by outside forces known as externals. Before making any decision, internals actively search for information, they are achievement-driven, and want to command their environment. Thus, internals do well on jobs that crave complex information processing, taking initiative and independent action. Externals, on the other hand, are more compliant, more willing to follow instructions, so they do well in structured, routine jobs. इन हिंदी नियंत्रण का ठिकाना नियंत्रण का स्थान किसी व्यक्ति की आचार संहिता के नियंत्रण का केंद्र है। लोगों को क्रमशः आंतरिक और बाहरी दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। जो लोग खुद को अपने भाग्य के स्वामी के रूप में मानते हैं उन्हें आंतरिक के रूप में जाना जाता है, जबकि वे जो पुष्टि करते हैं कि उनके जीवन को बाहरी शक्तियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है जिन्हें बाहरी के रूप में जाना जाता है। कोई भी निर्णय लेने से पहले इंटरनल सक्रिय रूप से जानकारी की खोज करते हैं, वे उपलब्धि से प्रेरित होते हैं और अपने वातावरण को नियंत्रित करना चाहते हैं। इस प्रकार इंटरनल्स नौकरियों पर अच्छा करते हैं जो जटिल सूचना प्रसंस्करण, पहल और स्वतंत्र कार्रवाई की लालसा रखते हैं। दूसरी ओर, बाहरी लोग अधिक आज्ञाकारी होते हैं, निर्देशों का पालन करने के लिए अधिक इच्छुक होते हैं, इसलिए वे संरचित, नियमित नौकरियों में अच्छा करते हैं। Self-esteem. Self-esteem, it is the extent up to which people either like or dislike themselves. Self-esteem is directly related to the expectations of success and on-the-job satisfaction. Individuals with high self-esteem think that they have what it takes to succeed. So, they take more challenges while selecting a job. On the other hand, individuals with low self-esteem are more susceptible to external distractions. So, they are more likely to seek the approval of others and to adapt the beliefs and behaviors of those they respect. इन हिंदी आत्मा सम्मान यह वह सीमा है जिस तक लोग खुद को पसंद या नापसंद करते हैं। स्वाभिमान है सीधे तौर पर सफलता की उम्मीदों और नौकरी से संतुष्टि से संबंधित है। उच्च आत्मा सम्मान वाले व्यक्ति सोचते हैं कि उनके पास सफल होने के लिए क्या है, इसलिए वे नौकरी का चयन करते समय अधिक चुनौतियों का सामना करते हैं। दूसरी ओर, कम आत्मसम्मान वाले व्यक्ति बाहरी विकर्षणों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं, इसलिए वे दूसरों की स्वीकृति लेने और उन लोगों के विश्वासों और व्यवहारों को अनुकूलित करने की अधिक संभावना रखते हैं जिनका वे सम्मान करते हैं। Self-monitoring. Self-monitoring is the capability of regulating one's behavior according to social situations. Individuals with high self-monitoring skill easily adjust their behavior according to external, situational factors. Their impulsive talents allow them to present public personae which are completely different from their private personalities. However, people with low self-monitoring skills cannot cover themselves. Regardless of any situation, they are always themselves.
They have an attitude of what you see is what you get. इन हिंदी स्वयं निगरानी स्व निगरानी सामाजिक स्थितियों के अनुसार किसी के व्यवहार को विनियमित करने की क्षमता है। उच्च स्व निगरानी कौशल वाले व्यक्ति बाहरी स्थितिजन्य कारकों के अनुसार अपने व्यवहार को आसानी से समायोजित कर लेते हैं। उनकी आवेगी प्रतिभाएं उन्हें सार्वजनिक व्यक्तित्व पेश करने की अनुमति देती हैं जो उनके निजी व्यक्तित्वों से बिल्कुल अलग हैं। हालांकि कम स्वनिगरानी कौशल वाले लोग स्वयं को कवर नहीं कर सकते हैं। चाहे कैसी भी स्थिति हो, वे हमेशा स्वयं होते हैं। उनका एक दृष्टिकोण है, आप जो देखते हैं वही आपको मिलता है। The CEO of LG realized that the sales of the company were declining. इन हिंदी LG के CEO ने महसूस किया कि सांस्कृतिक परिवर्तन के कारण कंपनी की बिक्री में गिरावट आई है। उन्होंने तुरंत अपनी नेतृत्व शैली में बदलाव किया और सशक्त टीमें बनाई। व्यवहार में इस बदलाव ने कर्मचारियों को एक नया रेफ्रिजरेटर विकसित करने में सक्षम बनाया जो पारंपरिक कोरियाई भोजन को स्टोर कर सके। इस उत्पाद ने कंपनी को लाभ कमाने वाली कंपनी में बदल दिया। LG के CEO के व्यवहार के समायोजन को स्वनिगरानी कहा जाता है। Risk taking generally, managers are reluctant on taking risks. However, individual risk-taking inclination affects the bulk of information required by the managers and how long it takes them to make decisions. Thus, it is very important to recognize these differences and align risk-taking propensity with precise job demands that can make sense. इन हिंदी जोखिम लेना आमतौर पर प्रबंधक जोखिम लेने से हिचकते हैं। हालांकि व्यक्तिगत जोखिम लेने का झुकाव प्रबंधकों द्वारा आवश्यक जानकारी के थोक को प्रभावित करता है और उन्हें निर्णय लेने में कितना समय लगता है। इस प्रकार इन अंतरों को पहचानना और सटीक नौकरी की मांगों के साथ जोखिम लेने की प्रवृत्ति को संरेखित करना बहुत महत्वपूर्ण है जो समझ में आता है। Machiavellianism is being practical, emotionally distant, and believing that ends justify means. Machiavellians always want to win and are great persuaders. Here are the significant features of a high Mach individual's -1. High Machs prefer precise interactions rather than beating about the bush. 2. High Machs tend to improvise, they do not necessarily abide by rules and regulations all the time. इन हिंदी मैकियावेलियनवाद व्यावहारिक, भावनात्मक रूप से दूर होना और विश्वास करना है कि अंत उचित है साधन। मैकियावेलियन हमेशा जीतना चाहते हैं और बड़े प्रेरक होते हैं। यहाँ है उच्च मच व्यक्तियों की महत्वपूर्ण विशेषताएं। घटाव 1. हाई मैक झाड़ी के बारे में मारने के बजाय सटीक बातचीत पसंद करते हैं। 2. हाई मैक सुधार करने की प्रवृत्ति रखते हैं, जरूरी नहीं कि वे सभी नियमों और विनियमों का पालन करें। समय 3. High Macs get distracted by emotional details that are irrelevant to the outcome of a project. Work-related behavior of people in an organization stems from both environmental and individual factors. From the environmental approach, interpersonal, group, and societal influences and individual factors extend across cognitive abilities, acquired expertise, personality styles, motivation, and physical attributes. A common aspect of personality is the manner in which we think of its effect on behavior. इन हिंदी 3. उच्च मच भावनात्मक विवरणों से विचलित हो जाते हैं जो किसी परियोजना के परिणाम के लिए अप्रासंगिक होते हैं। एक संगठन में लोगों का कार्य संबंधी व्यवहार पर्यावरण और व्यक्तिगत दोनों कारकों से उपजा है। पर्यावरणीय दृष्टिकोण से पारस्परिक, समूह और सामाजिक प्रभाव और व्यक्तिगत कारक संज्ञानात्मक क्षमताओं, अधिग्रहित विशेषज्ञता, व्यक्तित्व शैली, प्रेरणा और शारीरिक विशेषताओं में विस्तारित होते हैं। व्यक्तित्व का एक सामान्य पहलू वह तरीका है जिससे हम व्यवहार पर इसके प्रभाव के बारे में सोचते हैं। We tend to think of this in terms of a person with a particular set of traits. For example, we think of an aggressive, impatient person as one likely to act in an aggressive manner. The direction of the relationship is thought to stem from personality trait and move to behavior. That is to say, your personality greatly influences how you behave, not the other way around, that your behavior would explain your personality. For example, we usually assume that a shy person is not likely to go to parties, but we could also think that someone who does not go to parties or other social occasions is likely to become shy.
The assumed relationship between personality and work-related behavior is one of the key reasons why it is of interest to those who study and manage organizations. इन हिंदी हम इसके बारे में एक विशेष गुण वाले व्यक्ति के रूप में सोचते हैं। उदाहरण के लिए, हम एक आक्रामक, अधीर व्यक्ति के बारे में सोचते हैं कि आक्रामक तरीके से कार्य करने की संभावना है। माना जाता है कि रिश्ते की दिशा व्यक्तित्व विशेषता से उपजी है और व्यवहार की ओर बढ़ती है। कहने का मतलब यह है कि आपका व्यक्तित्व बहुत प्रभावित करता है कि आप कैसे व्यवहार करते हैं, न कि दूसरे तरीके से कि आपका व्यवहार आपके व्यक्तित्व की व्याख्या करेगा। उदाहरण के लिए, हम आमतौर पर यह मानते हैं कि एक शर्मीले व्यक्ति के पार्टियों में जाने की संभावना नहीं है, लेकिन हम यह भी सोच सकते हैं कि जो व्यक्ति पार्टियों या अन्य सामाजिक अवसरों पर नहीं जाता है, उसके शर्मीले होने की संभावना है। व्यक्तित्व और काम से संबंधित व्यवहार के बीच अनुमानित संबंध उन प्रमुख कारणों में से एक है जो संगठनों का अध्ययन और प्रबंधन करने वालों के लिए रुचि रखते हैं।